This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirfa Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirfa Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. This is the first section of the topic linear equations in two variables. That's why before solve any type of examples, we must have to understand the correct concept of linear equations in the two variables. What is linear equation in two variables? So you can select any letters. It is not necessary to consider only x and y for the variables. This is our tradition. That's why we are considering x and y as a variables. But mathematically, you can take any letter. Only thing keep remember, you declare whatever you have taken, that is or these are varying quantity. So that's why this is the part we have to understand. The variable are denoted by letters, but actually it is a varying quantity. Now, when I ask question to any student, what is linear equation? Then apparently, they replied me, an equation containing variables and the index power of variables is 1. That expression is called as linear equation. That is correct. But is it sufficient? So we will discuss in this video what is actual concept of linear equations in two variables. So basically, an equation in the form of 3x, I'm writing 3x plus 2y is equal to 7. So this expression containing how many variables? 2, one is x and another is y. So in the first term, only one variable is present, that is x, and the power of that x is nothing, means it is 1. In the second term, the variable y is present and the index power of y is nothing, means it's 1. And in the right hand side, there is a 7 and there is no variable, that means the powers of variables are 0. So here is not variable, therefore for the linearity we are not considering this term. So only these terms we are considering for declaring the linearity of this equation. So power of this variable is 1, power of this variable is 1 and 1 means linear. Therefore this equation is called as a linear equation. So in general, we can write a is any number, ax plus by plus c equal to 0 is a form of linear equation in two variables x and y. If suppose I am giving you another equation, 2x is equal to 3. So is it a linear? How many variables are there? Only one variable, that is x, and the power of x is 1, and therefore this is a linear equation in one variable x. If I will write y is equal to 7, this is also an equation containing one variable y and the index power of y is 1. Therefore, this is also a linear equation in one variable y. But if I'll write y square is equal to 25, then is it a linear?
then according to our observation the index power of y is 2, and when any variable is having power greater than 1, that is not linear. So we can declare that it is not linear. But the confusion arises in the mind of so many students that sir okay all right, the power is 2 इसलिए ये linear नहीं है, but we can take the square root on both sides. So square root of y square is y, and square root of 25 they are writing 5. और फिर वो मुझे बताएंगे कि देखो सर स्क्वायर रूट लेने के बाद y का पावर 1 आ गया, तो आप इसको नॉन लीनियर बोल रहे हो, ये तो लीनियर है। हमेशा कुछ चीजें इतनी गलत करते हैं हम मैथमेटिक्स में, और उन गलतियों को सुधारने के लिए ही निरफा मैथमेटिक्स बुक मैंने लिखा है। तो y का जब आपने y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 25 का स्क्वायर रूट आपने 5 लिखा, जो कि सही नहीं है। 25 का स्क्वायर रूट आता है प्लस और -5। इसीलिए और एक ऑब्जर्वेशन आपको समझना होगा कि जिस इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों आएंगे वो इक्वेशन कभी भी लीनियर नहीं रहेगा। So if I will give you another equation, that is x plus or minus y is equal to 7, यहां पर x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, still we are saying that this is not linear equation because x और y के बीच में प्लस माइनस दोनों आ गए। तो प्लस माइनस अगर आपको स्ट्राइक होता है उस इक्वेशन में तो आप बोल सकते हो कि वो इक्वेशन लीनियर नहीं है, भले उस x और y का पावर 1 हो। अब कोई स्टूडेंट्स ये बोलेगा कि व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, इज इट अ लीनियर? अब यहां 2 वेरिएबल्स हैं, बट दीज आर नॉट इन टर्म्स, दे आर फैक्टर्स, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो x का पावर 1, y का पावर 1, बट बेस का मल्टीप्लीकेशन है। तो एक्सप्रेशन में जब 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन आता है तो उस टर्म का इंडेक्स पावर दोनों का एडिशन होता है। तो इसका 1 है, इसका 1 है, और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है इसका इंडेक्स पावर हम ट्रीट करेंगे 2, एंड दैट्स व्हाई ये भी लीनियर नहीं है। तो और एक तीसरा ऑब्जर्वेशन कि जिस एक्सप्रेशन में x इंटू वाई या कोई भी प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेरिएबल्स आपको दिखेगा तो आप उस इक्वेशन को लीनियर नहीं बोलोगे, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है। अगेन सम स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग दैट सर अगर हमने इस इक्वेशन को ऐसा लिखा, यूजुअली ये सवाल आते हैं, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो हमें तो मिला x इक्वल टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए x का पावर 1 हो गया, तो क्यों ना हम इसको लीनियर बोले। सही बोला आपने, लेकिन यहां पर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो वेरिएबल y था जिसको आपने डिवाइड किया राइट साइड में, वो आप नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर ये तो हम करते आए हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन रहा, डिवाइड होके कर सकते हैं हम। जी, ये तभी कर सकते हैं जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो गारंटी आपके पास होनी चाहिए कि वो नॉन जीरो नंबर है। अब आपने यहां पर डिवाइड किया y से, y वेरिएबल है और उस y की वैल्यू आपको पता नहीं है, मे बी इट इज 0, और 0 से कभी हम डिवाइड नहीं करते। तो ये बड़ा रिस्की स्टेप होता है, और अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये चीजें बच्चे अननोइंगली करते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है और करेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश करना है। ये सवाल आने चाहिए कि क्यों ऐसा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों। आप कभी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर
पुलिस के द्वारा एक बोर्ड लिखा होता है कि लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाइए या उन्हें मत स्वीकार कीजिए। फिर भी एयरपोर्ट पे आपको एक लावारिस बैग दिखा। आपने वो पुलिस को बता देना चाहिए था, लेकिन आपके मन में लालच आ गया और वो बैग आपने अपने पास रख लिया। जब आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग में जाते हो तो उस बैग में कोई इलीगल वस्तु होती है और उसके ओनर आप होते हो, क्योंकि आपके पोजीशन में होता है वो बैग, इसलिए आपको जेल भी हो सकती है या आप ट्रबल में भी आ सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस बैग को कैरी किया जिस बैग में क्या है आपको पता नहीं था। यहां पर भी Y को डिवाइड करना उसी बैग की तरह है, क्योंकि उस Y की वैल्यू आपको पता नहीं है और गलती से उस Y की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, और फिर भी आपने किया, इसलिए आपका आंसर और आपका मैथमेटिक्स दोनों ट्रबल में आ सकते हैं। इसीलिए किसी भी वेरिएबल को डिवाइड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखिए कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जीरो है या नहीं। अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली यहां पर ये गलती हो गई, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो ये स्टेप आप नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग ये होता है ये इक्वेशन का कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब या तो ये 0 और ये 0। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस है, और दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट, लेफ्ट का प्रोडक्ट xy, राइट का प्रोडक्ट 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट से बना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस डिड नॉट बी लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम डिस्कस करेंगे कि तो सर फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। x² माइनस y² इज इक्वल टू सपोज 0। अब यहां पर तो क्लियर कट x का और y का पावर 2 है, जो लीनियरिटी के डेफिनेशन में नहीं बैठता है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, इट इज नॉट लीनियर। लेकिन फिर भी किसी बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आ गई और उसको ये एक आइडेंटिटी याद है a² माइनस b², उस आइडेंटिटी के हिसाब से उसने इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिखे और फिर उसने इस ब्रैकेट को इधर डिवाइड किया, तो आपको मिलेगा लाइक दिस। लेकिन यहां पर आप दावा कर सकते हो कि देखिए सर, उसको हमने मैनिपुलेट करके ऐसा इक्वेशन बनाया, इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों, ये लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फिर एक ट्रबल वाला काम किया, रिस्क वाला काम किया कि इस ब्रैकेट को जिसमें x और y है और उसके वैल्यूज आपको पता नहीं है, उसको आपने उधर जाके डिवाइड किया। ये चीज आप मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते, आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जब ये कर नहीं सकते तो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब होता है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ y की वैल्यू x मिलेगी और यहाँ y की वैल्यू माइनस x मिलेगी, मतलब आपको y मिलेगा या तो प्लस x या तो माइनस x। देखिए अब इसमें आपका प्लस माइनस आ गया, और हमने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन में मेंशन किया है कि जिस इक्वेशन में प्लस माइनस साइन आता है वो इक्वेशन कभी भी लीनियर नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर। दूसरा इक्वेशन में भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। अब ये इक्वेशन, अब इंस्टेंटली कोई बोलेगा कि देखिए x का पावर 1, y का पावर 1 है, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। Multiplication of two variables is not allowed in linearity or linear equation of two variables. तो आप instantly इसका जवाब दे सकते हो कि it is not linear। लेकिन
कोई बोलेगा कि सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x, तो फिर y का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। बट व्हाट इज द पावर ऑफ x? तो आप बोलेंगे x का पावर भी 1 है। नहीं, x का पावर 1 या कोई भी हम काउंट करते हैं जब वो वेरिएबल न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल वेरिएबल हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, उसको हम ऊपर लेते हैं। तो इंडाइसेस के रूल के हिसाब से जब ये ऊपर आएगा तो इसका इंडेक्स का साइन चेंज होगा। अब इसका पावर 1 है y का, लेकिन इसका -1 है, स्टिल इट इज नॉट लीनियर। और आपको अगर बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है लीनियर या नॉन लीनियर, या कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप एक काम कीजिए कि जैसे कि इस इक्वेशन की लीनियरिटी चेक करना है, तो आप x के 4 वैल्यू ले लीजिए। उस वैल्यूज को मैं नाम देता हूं लाइक दिस। तो एक वैल्यू कोई भी ले लीजिए, एक मैं 1 लेता हूं, x2 मतलब x की सेकंड वैल्यू मैं 3 लेता हूं, x3 मैं -2 लेता हूं, और x4 जो है वो एनीथिंग दैट इज 5 लेता हूं। कुछ भी वैल्यूज आप ले सकते हो। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में आप x के जगह पे पुटअप करोगे एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू y निकालोगे। वो आएगी आपकी, जब व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y शुड बी 1, और ये x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय y1। फिर यहां y2 निकलेगा, इट इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x2। तो x2 3 था, तो x के जगह 3 पुटअप करेंगे तो y2 आएगा 1/3, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हम। 3 इज अ नंबर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज वो गारंटी देता है कि वो 0 नहीं है। फिर x3 की वैल्यू -2 पुटअप करेंगे तो हमें y3 मिलेगा, एंड दैट इज -1/2। और x4 की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें y4 मिलेगा, और वो आएगा 1/5। ये 4 वैल्यू निकालने के बाद आपको एक रेशो कैलकुलेट करना है, y2 - y1। y के वैल्यूज हमेशा न्यूमरेटर में लेने, और जो y करस्पॉन्डिंग था उसके x की वैल्यू नीचे लेने। मतलब y2 है तो x2 लेना है, y1 लिया है तो x1 लेना है। कैलकुलेट दिस रेशो। तो y2 इज 1/3 माइनस y1 इज 1 डिवाइडेड बाय x2 इज 3 एंड x1 इज 1। तो डिनोमिनेटर तो ये आपका 2 बनेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो ये आएगा -2/3। देन यू कैन राइट दिस एज अ -2/3 इंटू आपका ये 2, देन ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और आपको इस रेशो का आंसर मिलेगा -1/3। आपको और एक रेशो निकालना है, लेकिन दूसरे x के वैल्यूज लेना है। तो मैं यहां लेता हूं y4 - y3, और यहां लेता हूं ये y4 है तो यहां x4 लेना होगा, और यहां x3 लेना होगा। आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज है, y4 इज 1/5 माइनस y3 इज -1/2, तो माइनस प्लस हो गया। x4 is nothing but 5 and x3 is -2, तो माइनस +2 हो गया। तो ये हो जाएगा नीचे 1/7 इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये ऊपर इस तरीके से आएगा, वो हो जाएगा 7, ये 7 और ये 7 कैंसल, और आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द रेशियो इज 1/10। और ये वैल्यू और ये वैल्यू जब डिफरेंट आती है तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं होता है। कोई भी वैल्यूज का रेशियो कितनी बार भी निकालेंगे और वो सेम ही आएगा, तभी वो लीनियर होगा। ये एक क्राइटेरिया आप अपने पास रख सकते हो टू डिसाइड द लीनियरिटी। भले आपके स्कूल में ये पूछा न जाए क्योंकि आपके बुक में ये सारे चीजें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, आप मैथमेटिक्स में मास्टर बनना चाहते हो, और मैथमेटिक्स अपने लॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए पढ़ना चाहते हो, तो इसीलिए निरफा मैथमेटिक्स बुक मैंने लिखी है, और वो बुक आपको लाभदायक रहेगी। इस तरीके के कंसेप्ट कि जो बच्चों के मन में आना चाहिए, क्यूरियोसिटी
कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। तो ये जब रीजनिंग उसका डेवलप होगा धीरे धीरे, तभी बच्चा मैथ्स में इंटरेस्ट लेगा और वो अच्छे से और करेक्टली पढ़ेगा। तो ये लेक्चर सुनने के बाद शायद आपके सारे डाउट्स लीनियरिटी के बारे में क्लियर हुए होंगे, और अब आप कोई भी एक्सप्रेशन को देखकर समझ सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो, या आपको कोई गूगली क्वेश्चन डाला है तो आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियाज आ गए लीनियरिटी को चेक करने के। तो अभी इस लेक्चर के बाद किसी भी स्टूडेंट्स का लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन का स्पेलिंग आप देखोगे तो लीनियर इक्वेशन का जो स्पेलिंग होता है उसमें LINEAR, उसमें ये जो पहले 4 लेटर्स है ना वो है लाइन। और इसलिए हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैं सिर्फ 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन। और स्ट्रेट लाइन या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, मतलब उसको चढ़ाव होगा, उतार होगा, या वो स्टेडी रहेगी। वो जो होता है इंक्लिनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्लोप। और जिस लाइन का या जिस कर्व का स्लोप स्टेडी कांस्टेंट रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। और जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो अलजेब्राइक इक्वेशंस होते हैं वो लीनियर कहलाते हैं। इसलिए ये जो हमने यहाँ पे रेशो कैलकुलेट किए जिसका आंसर इक्वल आना चाहिए था, अगर वो इक्वल आता तो वो इक्वल आंसर जो भी आया होता वो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता। स्लोप जब 0 होता है तो फ्लैट मतलब सीधा रास्ता है, स्ट्रेट। आप जब उस पर साइकिल चलाओगे तो आपको नॉर्मली आप चलाओगे। स्लोप जब निगेटिव आता है तो उतार रहता है, मतलब आपको कुछ भी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपकी साइकिल अपने आप नीचे आ जाएगी, स्लोप इज निगेटिव। और जब चढ़ाव पे आप साइकिल चलाते हो तो आपको एनर्जी वहां पर लगानी होती है ताकि आप उसको क्लाइंब कर सके। तो उस वक्त वो जो रोड है जिसपे आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, दैट इज नथिंग बट हैविंग स्लोप पॉजिटिव। तो ये रेशो इज नथिंग बट स्लोप। ये भी जानकारी आपको मिल गई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन इन द प्लेन, ये भी जानकारी मिल गई। लीनियर इक्वेशन में प्लस माइनस साइन अलाउड नहीं होता है, ये भी जानकारी मिल गई। आप किसी भी वेरिएबल को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आपके पास गारंटी नहीं है कि वो 0 हो ही नहीं सकता, तो वो भी आपने सीख लिया। और ये सारी तमाम चीजें सीखकर अब आप एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, अब जाके कहीं मालूम हो गई, तो उसका एंजॉय कीजिए और अच्छे से मैथ्स पढ़िए। अब आपका काम है जो सेक्शन 1 के बाद एक्सरसाइज आपको दिया है वो एक्सरसाइज आप खुशी खुशी एंजॉय करते करते सारे ट्रिक्स को याद करके अप्लाई करके सॉल्व करोगे। तब तक खुद का, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।